میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشنز کے نتائج کیا ہوں گے، اور خاص طور پہ حیدرآباد کا میدان کون مارے گا، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی۔ تو آج ہم حیدرآباد کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حیدرآباد جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور 40 لاکھ کی آبادی کے قریب اس کی آبادی ہے، اور روایتی طور پہ بہت عرصے سے حیدرآباد کی جو میئرشپ ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس رہتی آئی ہے۔ ایم کیو ایم نے حیدرآباد کو جنرل ضیاء کے دور سے لے کے مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے۔ اس کی ایم کیو ایم کی حکمرانی رہی ہے، یہاں کا میئر ایم کیو ایم کا رہتا آیا ہے، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اور حیدرآباد کی صورتحال جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس کی صورتحال کو دیکھنے کے بعد یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ ایم کیو ایم الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے، اور ڈی لیمیٹیشن کا بہانہ لے کے آخری وقت تک ایم کیو ایم نے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے سندھ حکومت پہ پریشر ڈالا، الیکشن کمیشن پہ پریشر ڈالا، اور عدلیہ پہ، ہائر جوڈیشری پہ پریشر ڈالا کہ ایم کیو ایم چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ الیکشنز کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون ہو جائیں۔ اس کے بنیادی سبب اس کا یہ ہے کہ اب حیدرآباد کی صورتحال کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد کراچی کی اور باقی سندھ کے شہروں میں ایم کیو ایم کی پوزیشن ہمیں واضح نظر آ جائے گی۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں کل 160 یونین کونسلز ہیں، اور ایم کیو ایم جو حیدرآباد کا ہمیشہ میئر ان کا رہتا آیا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم صرف اور صرف 80 یونین کونسل پہ اپنے نمائندے کھڑے کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھے کینڈیڈیٹس، آدھے یونین کونسل پہ ایم کیو ایم کو جو کینڈیڈیٹس بھی نہیں ملے۔ 160 یونین کونسل میں سے 80 یونین کونسل پہ جو ہے وہ ایم کیو ایم نے نمائندے کھڑے کیے ہیں، اور لگ بھگ 80 جو ہے یونین کونسل پہ ان کے نمائندے ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے ہی جو ہے وہ، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے 26 یونین کونسلز ایسی ہیں جہاں پہ ان کے مد مقابل کسی پارٹی کا کوئی امیدوار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی بھی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس گنے چنے کچھ یونین کونسل ہیں جہاں پہ انہوں نے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ تو یہ ایک جو سچویشن ہے وہ حیدرآباد کی ہے، اور حیدرآباد بالکل ہی کلیئر اس نتائج کی روشنی میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والا میئر حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور میئر کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں 9 ٹاؤن ہیں۔ 9 ٹاؤن کے بھی جو ہے وہ بنیں گے، حکومتیں بنیں گی، لوکل باڈیز کی حکومتیں بنیں گی، اور اس میں جو سیاسی اور صحافتی حلقے ہیں جو سیریسلی ووٹوں پہ اور الیکشنز پہ کام کرتے رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم زیادہ سے زیادہ ان 9 ٹاؤن میں سے 2 یا 3 ٹاؤنز پہ کامیاب ہو سکے گی۔ اب ایم کیو ایم کے اس بہت بڑے فیلیور کا، جو ایم کیو ایم کی اور سندھ کی شہری علاقوں کی سیاست پہ مستقبل میں بہت ہی گہرے اثرات چھوڑے گا، اس کے سبب بالکل ہی صاف ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو سب سے جو بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئی، گروپس میں بٹ گئی، اور ایم کیو ایم کے ہر دھڑے کا لیڈر یہ سمجھنے لگا کہ اب وہی ہے جو الطاف حسین کی جگہ لے گا اور وہ ڈان بنے گا، اور
सिंध के शहरों के स्याह और सफ़ेद का मालिक बनेगा। और उन्होंने इस लालच में और दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट और ग्रुप्स के इन्फ्लुएंस में MQM को तोड़ दिया और MQM के 3 बड़े ग्रुप बन गए। और जब 3 बड़े ग्रुप बन गए तो उन्होंने न सिर्फ वोटर्स को तोड़ा, डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन लीडरशिप, MQM की लीडरशिप ने एक दूसरे पे ऐसे ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगाए कि लोगों ने कानों पे हाथ रख दिए और ये कहने लगे कि ऐसे लोग हैं जिनको हम वोट देते हैं, जो हमारे लीडर हैं। एक बहुत बड़ा सबब ये है कि MQM की टूट फूट ने MQM के अंदर के जितने भी नेगेटिव साइड्स थे वो सारे जो है वो लोगों के सामने कर दिए। एक सबब ये। दूसरा बड़ा सबब ये है कि अल्ताफ़ हुसैन की जो MQM लंदन है उसने बाइकाट कर दिया है। और MQM के अल्ताफ़ हुसैन के बाइकाट करने की वजह से भी MQM जो है वो उर्दू आबादी में वो अपना असर नहीं बना सकती, क्योंकि कहना ये है लोगों का कि अल्ताफ़ हुसैन अब भी मैटर करते हैं। और उर्दू आबादी का जो वोटर है वो अल्ताफ़ हुसैन के आवाज़ को सुनता है और उसको कबूल करता है। अब ये तो पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसने हमने देख लिया है कि उर्दू आबादी मेजॉरिटी में वोट देने नहीं आती और उसका सबब अल्ताफ़ हुसैन का बाइकाट होता है। 10 से 15% लोग वोट करने आते हैं, तो ज़ाहिर है पूरी 1 लाख अगर वोट दाखिल है या 1.5 लाख किसी हलके में वोट दाखिल है और 10,000 15,000 पे सीट जीती जाती है, मुखालिफ भी 10,000 वोट लेता है और जीतने वाला भी 10-12 हज़ार वोट लेता है, तो ये 10% वोट है। वो तो ज़ाहिर है सिंध के शहरों में सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं रहते हैं, सिंधी रहते हैं, पश्तून रहते हैं, दूसरी लोगों के दूसरी कौमियतों के और ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है वोट करते हैं। तो एक सबब तो अल्ताफ़ हुसैन का फैक्टर हो गया। दूसरा सबब ये है कि MQM की टूट फूट और MQM के टूट फूट के नतीजे में जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगे और वो एक कच्चा चिट्ठा जिसे बोलते हैं एक दूसरे का खोल दिया। उन्होंने एक दूसरे के का अंदर जो है वो सारा आईने की तरह साफ़ करके लोगों को दिखाया, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और यहाँ पे एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो कम ही लोग काउंट करते हैं वो है तहरीक लब्बैक का वोटर। तो तहरीक लब्बैक का वो जो वोटर है बुनियादी तौर पे उसमें सिंधी और दूसरे लोग कम ही हैं, तो ये वोट जो कटता है या कट रहा है आज की इस इलेक्शन में भी कट रहा है, तो वो ज़्यादातर MQM का वोट ही कट रहा है। और PTI भी जो है वो ज़्यादातर MQM का वोट काट रही है, उर्दू स्पीकिंग लोगों का वोट काट रही है, क्योंकि PTI जो है वो सिंधी स्पीकिंग लोगों में इतना डेंट, पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में इतना डेंट डालने में कामयाब नहीं हो सकी। तो ये सारे जितने भी मसाइल हैं, इसकी वजह से ये साफ नज़र आ रहा है कि हैदराबाद जो कि अब देखें कैसी बात है कि MQM ने जनरल ज़िया के दौर से लेके कुछ वक़्त पहले तक, जब तक वो हुकूमत में थे, तो उन्होंने कोशिश ये की थी कि स्पेसिफिक हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी सिंधी इलाके थे, सिंधी बोलने वाले लोगों के इलाके थे, हैदराबाद की मेयरशिप और हैदराबाद का शहर अपने कंट्रोल में करने के लिए सारे इलाके जो है वो अलग कर दिए। ऐसा कभी टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट जो होता था वो भी हैदराबाद में होता था, टंडो अलाया डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में होता था। कभी ये वक्त था कि जो मटियारी डिस्ट्रिक्ट है वो भी हैदराबाद में था, और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है जो है वो भी कभी हैदराबाद में होता था। लेकिन MQM ने सिंधी वोटर्स को या सिंधियों की जो शहर पे एक मेजॉरिटी को रोकने के लिए डीलिमिटेशंस ऐसे ज़िले बनाए। अब देखें छोटे छोटे ज़िले बनाए, टंडो अलायार को ज़िला बना दिया, टंडो मोहम्मद खान को ज़िला बना दिया। ठीक है,
सिंधी इसमें भी खुश हैं कि उनको डिस्ट्रिक्ट्स बन के मिले और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वो अपने करीब जाके अपनी कोर्टों में, रेवेन्यू में, पुलिस में, एसपी डीसी के पास जाने में उनको सहूलत हो गई है। ये एक अच्छी बात हो गई है। लेकिन इंटेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, MQM के इंटेंशन की बात कर रहा हूँ कि जब वो इक़्तिदार में थी तो उन्होंने डिलिमिटेशन का ऐसा तरीका अख्तियार किया जैसे सिंधियों को हैदराबाद के हुकूमत साजी में सिंधियों का असर कम से कम किया जाए। लेकिन अब ये बात ख़त्म हो गई है, क्योंकि एक तो सिंधी हैदराबाद शहर में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और दूसरा MQM जो है वो अपना सियासी असर व सलूक जो है वो काफ़ी हद तक कम कर चुकी है। तो इसके नतीजे में अब साफ नज़र आ रहा है कि हैदराबाद में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। हैदराबाद में जो है वो मेयर जो है हैदराबाद का वो पीपल्स पार्टी का बनने जा रहा है और उसके साथ साथ मेजॉरिटी में जितने भी टाउन्स हैं वो भी पीपल्स पार्टी अक्सर से जीत जाएगी। और इस बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे में MQM का दूसरा बड़ा जो मरकज़ हुआ करता था हैदराबाद, वो MQM से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए से छिन जाएगा। एक और यहाँ पे मैं विला ख़त्म करने से पहले मैं एक और फैक्टर का ज़िक्र करना चाहता हूँ और वो फैक्टर है सिंधी कौम परस्तों का। उस पर मैं अलग से कल वीडियो बनाऊँगा और उसमें ये है कि हैदराबाद क्योंकि सिंधी कौम परस्तों का ज़्यादातर सेंटर ही रहा है। सिंधी कौम परस्त जितने भी हैं उनके ऑफिसेज, उनके वर्कर्स और उनकी पूरी स्ट्रेंथ हैदराबाद में रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिंधी कौम परस्तों ने ख़ुद को इतना नाअहल और नालायक साबित किया है कि लगता नहीं है कि कल के जो या आज जब ये वीडियो चल रही है तो आज हो जाएगा, आज की इलेक्शन में कोई सिंधी कौम परस्त कोई काबिल ज़िक्र कोई चीज़ कर सकेंगे या कुछ यूनियन काउंसिल जीत सकेंगे। ये सिंधी कौम परस्तों की बहुत बड़ी नाअहली है और उसके असबाब क्या हैं उस पर तो मैं ज़ाहिर है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन नेट रिज़ल्ट की बात यह है कि उन्होंने ख़ुद को इंतहाई नालायक और नाअहल साबित किया है। तो इसके साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों को, मेरे अपने दोस्तों को, भाइयों को ये हमेशा की तरह गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल SJ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको कमेंट्स करें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये चैनल सिंध, बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क के गरीब और मज़लूम लोगों का चैनल है, उनका आवाज़ है। आओ मिल के उन गरीब मज़लूम लोगों के आवाज़ को ताकतवर बनाएं और ताकत के ऐवानों में और पावर पिलर्स में उनकी भी जगह बनाने के लिए कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।